ہم جب شداد کی جنت کے بارے میں پڑھا کرتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یار وہ کیسی ذہنی حالت ہوگی. یہاں پہ فیملی سٹریک چلی آ رہی ہے. لڑکے کے دادا کو دیکھا جائے, پھر ان کے والد صاحب کو دیکھا جائے, اور پھر اب انہوں نے جو حرکت کی ہے ان کو دیکھا جائے, تو یہاں پہ پورا فیملی کا ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے. پارٹی یوٹیوبرز ہیں, انہوں نے کس طرح نور مقدم کے اوپر کیچڑ اچھالا. یہ اس خاتون کے بارے میں بھی یہ کریں گے. یہ باقاعدہ یہ مافیا ہے, یہ پیڑ طبقہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نشہ, یہ اخلاق باختگی, یہ انتہا پسندی اور یہ سارا کچھ کر کے اپنے آپے سے باہر ہو جانا, یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو گند ہے یہ ایک پارٹی کے اندر سمو دیا ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، آج کے دن کی ابتدا جو ہے وہ کافی ایک بہت ہی دردناک قسم کے واقعے سے ہوئی، اور جس کو میں ایک ریلیٹ کرنا چاہوں گی 1 سال پہلے پیش آنے والے واقعے کے ساتھ. کہ اگر اس واقعے میں بات کر رہی ہوں نور مقدم کے کیس کی، کہ اگر اس واقعے میں انصاف ہو چکا ہوتا اور جس وحشی درندے نے نور مقدم کا قتل کیا تھا اس کو سزا ہو چکی ہوتی تو شاید اس طرح کے واقعات میں کچھ کمی ہوتی. لیکن ایک بار پھر اسلام آباد میں ایک ہائی پروفائل مرڈر کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ایاز امیر صاحب کی جو بہو ہے، ان کے بیٹے کی اور بہو کی جو ہے یہ 3 ماہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی جو رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اب 3 ماہ بعد وہ 1 روز پہلے دبئی سے واپس آئی ہے، اور دونوں میاں بیوی کے درمیان پتہ نہیں کیا ناچاکی ہوئی ہے کہ بات یہاں تک آ پہنچی کہ اس کے شوہر نے، شاہ نواز امیر نے جو ہے مقتولہ سارہ کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ جو ہے یہ پہلے وہ نور مقدم والا واقعہ ہو یا یہ والا واقعہ ہو، دونوں کے اندر آپ کو ایک چیز کامن نظر آتی ہے. ایک یہ ہے کہ مطلب کہ خوشحالی ہے، پیسے کی بہت زیادہ فراوانی ہے، کرنے کے لیے کوئی کام کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ کرنے کے لیے کام نہیں ہے تو پھر پارٹی ہوتی ہے، پارٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر پھر منشیات آتی ہیں. پھر منشیات کا بھی لیول ہے. بالکل، پولیس نے رپورٹ کی ہے کہ شاید ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈرگز کا عادی تھا، منشیات کا عادی تھا، اس کو نشے کی، اور وہ شاید نشے کی حالت میں ہی تھا جس وقت اس نے جو ہے یہ مرڈر کیا. یہ جب یہ بچے جو ہیں یہ اب کراس کرتے ہیں، اس طرح کے کوئی محاورے ہیں ان کے، تو وہ پھر ایسی دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. ہم جب شداد کی جنت کے بارے میں پڑھا کرتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یار وہ کیسی ذہنی حالت ہوگی کہ جس کے اندر کوئی شخص جو تھا وہ اس کے حکم پر اپنی گردن کاٹ دیا کرتا تھا. یہ کیسی ہوگی؟ تو وہ ایسی ذہنی حالت ہوگی جو ان لوگوں کی ہوتی ہے. نور مقدم کا مجرم جو ہے اس کو لوور کورٹ نے سزا دے دی ہے، ہائی کورٹ کے اندر اس کی اپیل ابھی زیر سماعت ہے، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کا کوئی انجام تو لوگوں کے سامنے نہیں آیا. مطلب ہمارے جوڈیشل سسٹم کی آپ کیا کہتے ہیں کہ کمزوری کہہ لیں. نہیں، اپیل پینڈنگ ہے نا. اپیل کے حق کے بغیر تو کسی کو نہیں پھانسی چڑھایا جا سکتا. دوسرا یہ ہے زیادہ ثبوت ہونے کے باوجود ایک کیس جو ہے وہ اتنا عرصے تک لٹکا رہے اور کہ ابھی تک وہ اپیل والا معاملہ ہی جو ہے وہ سنبھالے میں نہیں آ رہا، تو یہ مطلب کہیں نہ کہیں کوتاہی تو ہے نا. ہاں بالکل ہے. ہمارے ججز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ راہ چلتے پولیٹیکل کیسز جو ہیں بلکہ فرمائش کر کے کہہ کے پولیٹیشین کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس لے آئیں، اور پھر سارا دن اس پہ بیٹھ کے آبزرویشنز دیتے ہیں، ٹکر بناتے ہیں ٹی وی کے اور ہیڈ لائنز لگواتے ہیں. اور نور مقدم کا کیس جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ سماعت میں نہیں آ پا رہا. تو بہرحال اس پہ ہونا چاہیے، لیکن ابتدائی طور پہ اس کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے. اب میں صرف اس طرح جا رہا ہوں کہ وجہ اس کی کیا ہے. یہ جو بگڑے ہوئے نوجوان ہوتے ہیں، عیاش نوجوان ہوتے ہیں، جب یہ قسم کے نشے کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے کے اندر یہ چیز وجود میں آتی ہے. یہ نسل جو ہے یہ 2002 کے بعد آئی ہے. اب آپ دیکھیے، اب آپ کو کہیں سے منشیات نہ ملے تو آپ کو یہ جو بڑے لوگوں کے تعلیمی ادارے ہیں مہنگے وہاں سے ضرور مل جائیں گی، اور آئس سے لے کے اور پتہ نہیں کون سا نشہ جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں دستیاب ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ڈیزاسٹر آ رہا ہے. دنیا کے اندر بھی شاید ایسا ہوتا ہو لیکن اتنے بدترین طریقے سے نہیں ہو رہا. جس طرح اگلی نسل جو ہے وہ اس کے اوپر لگ رہی ہے اور ایک ایکسٹریم کی طرف جا رہی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک کمیرا نام کی ایک کمپنی ہوتی تھی
जो कि नोकिया बेचा करती थी, सोल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट थे, उसके सीईओ साहब जो थे बनी गाला में, उनके साथ ये हो गया था जब नवाज शरीफ साहब का तीसरा दौर था, उस वक्त मुझे याद है। तो मेरा मतलब है और भी बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे जिसमें ये लोग 2 या जी 3। बिल्कुल, नूर मुकद्दम से पहले लाहौर शादमान के इलाके में भी इसी तरह से एक पार्टी के दौरान जो है वो लड़की का गला काट के उसको मर्डर कर दिया गया। लेकिन इनके अंदर इतने बड़े बड़ी ख़ानदानों के लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि उसके बाद कुछ अरसे तक जो है ये केस रिपोर्ट होते हैं या इनकी कहीं खबर लगती है, उसके बाद जो है वो लोग भूलना शुरू हो जाते हैं, मामला दब जाता है। नूर मुकद्दम का केस तो फिर भी सोशल मीडिया और यूट्यूब की मदद से जो है वो काफ़ी टाइम तक चलता रहा। लोगों ने इसकी समाज के हवाले से जो भी अपडेट्स होती थी उसके ऊपर वीलॉग्स करते थे, काफ़ी टाइम तक सोशल मीडिया ने इस केस को जिंदा रखा। लेकिन अदरवाइज अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें या लोगों की याददाश्त की बात करें तो कुछ दिन के बाद तो सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, ये भी है, लेकिन दोनों केसेस के अंदर एक जो डिसिमिलैरिटी है, वहाँ पे फैमिली हिस्ट्री वैसी नहीं थी। वो नूर मुकद्दम वाले केस में ना, जो कातिल था उसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी नहीं थी। यहाँ पे फैमिली स्ट्रीक चली आ रही है, लड़के के दादा को देखा जाए, फिर उनके वालिद साहब को देखा जाए, और फिर अब उन्होंने जो हरकत की है उनको देखा जाए, तो यहाँ पे पूरा फैमिली का एक बैकग्राउंड मौजूद है बाकायदा। इस हवाले से जो है वो मैं उनका जिक्र नहीं करना चाह रहा। चकवाल में हर बच्चे को पता है कि ये जो मुलज़म है जिसने अब कत्ल किया है अपनी बीवी को, इनके दादा क्यों कत्ल हुए थे, ये हर ज़ुबान ज़द आम है जी। तो उनकी एक फैमिली स्ट्रीक भी चली आ रही है इस हवाले से, तो उसने भी मैटर। लेकिन सर हमारी अपनी कुछ कल्चर भी है कि जो पहले ज़माने में हम देखते थे कि जो इस तरह की फैमिलीज होती थी उनका बहुत ज़्यादा सोशली बायकॉट किया जाता था। लेकिन अब पिछले अरसे से हमने देखा है कि इस तरह की फैमिलीज के पास क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो यही हमारे शुरफा और जो है वो बहुत ही इज़्ज़तदार किस्म के लोगों में इनका शुमार होना शुरू हो गया। बजाय इनका सोशली बायकॉट करने के, ये लोग तो हमारे जो है वो मतलब मैं अब क्या कहूँ कि लीडरान में इनका शुमार होना शुरू हो गया। अफीफ़ा इसमें आप ना देखिए सोशल मीडिया का भी बहुत दखल है। अब आप देखिए एक पार्टी के जो पार्टी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने किस तरह नूर मुकद्दम के ऊपर कीचड़ उछाला, उसकी किरदार कुशी की, उसके बारे में बकवासियात, वाहियात और हज़ियान आखिरी दम तक बकते रहे हैं वो लोग। मैं किसी मतलब कि और कोई बेइज्जत नहीं है और कि ये सारा अब लड़की जो है देखिए वो उसकी बीवी थी, लेकिन हो मेरी सकता है कि बात, उसके हाँ कैरेक्टर के बारे में भी अजीबोगरीब किस्म की चीजें जो है वो फैलाना जी शुरू कर दें। और अब ये इससे साहब भी कोई अयाज बेइज्जत नहीं अमीर है। साहब भी जिनके जलसों में जाते हैं और जिनकी हिद्दी खानी करते हैं वो वही पार्टी है। तो इसका मतलब है कि ये नशा, ये अखलाक बाख्तगी, ये इंतहा पसंदी और ये सारा कुछ करके अपने आपे से बाहर हो जाना, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये तमाम जो गंद है ये एक पार्टी के अंदर समो दिया है कि हमें पहचानने में उसमें आसानी रहे। ये देखिएगा ये जो खातून होगी इसकी किरदार कुशी में भी ये लोग जो हैं, ये जो अनासर हैं जिन्होंने नूर मुकद्दम के बारे में जो है वो मकतूला के बारे में जो बकवासियात वाहियात की थी, ये इस खातून के बारे में भी ये करेंगे। ये बाकायदा ये माफिया है, ये पेड़ तबका है जिन्हें इस तरह की माशरे के अंदर ज़हनी जो है वो गंद फैलाने के बाकायदा अदायगी होती है। लेकिन अच्छा इसमें देखना ये पड़ेगा कि इतने नौबहत्ता जोड़े के अंदर जब इख्तलाफात होते हैं तो उस वक्त बुज़ुर्ग उसमें आते हैं और उनके आपस में इख्तलाफात को तय करवाते हैं। बुज़ुर्ग किसी भी तरफ के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बुज़ुर्ग की कोई एंट्री या कोई ट्रेस भी नहीं मिलता ना। और अगर मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं लाहौर में, नहीं, लेकिन जो थोड़ी सी बहुत तफसीलात जो है हमारे तक पहुंची हैं वो मैं अगर आपके साथ भी शेयर करूं तो अभी तक जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि इनकी 3 माह पहले शादी हुई थी। ये लड़की दुबई में काम करती थी और दुबई से ये 1 रोज़ पहले ही जो है वो वापस आई थी, मतलब ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, 1 रोज़ पहले वापस आई है। और जिस वक्त ये कत्ल का वाक़या हुआ है उस वक्त अयाज अमीर साहब की जो साबिक अहलियाँ हैं वो घर में मौजूद थी। और तफसीलात कुछ इस तरह से है कि पहले शायद उसके सर पे जो है वो लोहे का रॉड मारा गया है, जिसके बाद वो बेहोश हो गई है, मतलब अभी उसकी जो है वो ज़िंदगी बाकी थी। जिसके बाद उसको उठा के जो है वो नहाने वाले टब में डाला गया, उसके ऊपर पानी खोल दिया गया, जिसके बाद वो पानी में दम घुटने की वजह से डूब के जो है वो मर गई। मतलब रॉड मारने के बाद तसल्ली नहीं हुई थी या इतना कुछ होने के बावजूद भी घर में
कोई इस तरह का एक्शन लेने वाला मौजूद नहीं था कि कोई देख सकता, कोई चीख की आवाज़ सुन सकता या कुछ और होता। लेकिन बहरहाल उनकी जो साबिक एहलिया थी, उसके बाद उन्होंने ही फिर पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची। लेकिन आप इस तरह की ये तफसीलात हैं जो सामने आ रही हैं कि एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहाँ तक पहुंच गई। लाहौर में एक वाक़या हुआ था, वो किसी गेम के अंदर वो बच्चा इन्वॉल्व हो गया था और साथ में वो नशा भी करता था, और उस बच्चे ने अपने घर में और घर के बाहर कम से कम 5 से 6 लोगों को कत्ल कर दिया था। जब वो उस नशे के असर में से निकला था तो पुलिस ने उससे पूछा कि आपने इतने लोगों को कत्ल कर दिया। उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं किया, मैं तो गेम खेल रहा था। तो वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर, तो ये भी हो सकता है ऐसा ही हो कि क्योंकि इस तरह की खौफनाक आजकल बहुत एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमें इसके ऊपर डिस्कशन से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे ये प्रोग्राम छोटे जहन के बच्चे भी देखते हैं जो अभी इस लेवल पे नहीं पहुँचे, और हमें इसलिए भी अवॉइड करना चाहिए कि अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ नहीं किया और इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू होगी। और हमें बाकी लोगों से भी ये तवक्को रखनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने नूर मुकद्दम के केस के अंदर गंद डाला था, वो इस दफ़ा गंद डालने से बाज रहेंगे, और अगर वो गंद डालेंगे तो फिर हम उनका पीछा करेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त इस तरह की बातें करने से जो स्पॉट कवरेज वाला रिपोर्टर है वो जो कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन ले के उसको चला रहा है, उसको चलाने दिया जाए, लेकिन उस पर तबसरे से एतराज़ किया जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही बदकिस्मती का वाक़या है कि ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, और इनके बढ़ने की वजह मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान है जो कि तालीमी अदारों के अंदर से आ रहा है। तालीमी अदारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चों को इंगेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन के ऊपर पाबंदी लगा दी हुई है कि वो वाइस चांसलर की जो बदमाशियाँ होती हैं या उनकी जो लूट मार होती है उसके ऊपर स्टूडेंट यूनियन आवाज़ उठाया करती थी। तो स्टूडेंट यूनियन को के ऊपर अगर पाबंदी है तो बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटी तो दीजिए। साल ही हो गए हमें सुने हुए कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने, दिहाइयाँ गुजर गई कि हमारे दौर में जो पंजाब यूनिवर्सिटी में मुशायरा हुआ करता था वो कभी मुशायरा, उसकी रवायत ही ख़त्म हो गई, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रवायत चली आ रही थी। इस तरह की सरगर्मियाँ जो हैं वो बच्चों को वो जो है वो इंगेज करें तो वो मंशियात से हट सकते हैं। कितना अरसा हो गया पाकिस्तान के तालीमी इदारों के बच्चों ने कौमी गेम्स के अंदर कोई सरगर्मी दिखाई हो। ये सारे दरवाजे हम बंद करते जा रहे हैं और अपनी नौजवान नस्ल को खौफनाक तरीके से मंशियात की तरफ धकेल रहे हैं। ये उसके कुछ सिम्टम्स हमें नज़र आ जाते हैं या आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा बम बन रहा है। ये लोग सियासत में घुसते हैं तो वहाँ पे भी गंद बनते हैं, और अगर इन तालीमी इदारों में घुसते हैं तो वहाँ पे भी गंद बनते हैं। मेरा ख्याल है हम इस मौजू पे इतना ही काफ़ी समझें, इंतज़ार करें फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या आती है। जी बिल्कुल नाजरीन, रिजवान रज़ी साहब के एनालिसिस से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि इसके ऊपर जो है वो वालिदैन को और तालीमी इदारों को जो है वो अपना किरदार अदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम अपनी नई नस्ल को जो है वो इस तरह की मंशियात से और इस तरह की जो बुरी आदतें हैं उनसे बचा सकें और उनको महफूज बना सकें। तो इस केस में फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।